Namaste everyone. I hope I am audible. Yes, sir. Okay, thank you very Yes, much. sir. Yes, sir. Okay, so my name is Karthik KP, and it would be very great if we can remain interactive for the whole session. So actually, I know that it is very boring to hear a class in the evening, but you guys must be accustomed to the same. So anyway, uh, actually it is a crash course, so there is no point in giving very large explanation, and I have been given Charaka Samhita Kalpasthana to deal with. So actually Kalpasthana is not a big deal, so it is in fact the most unimportant part of Charaka Samhita, to be honest. You have to come to Kalpasthana only after finishing all the other sthanas and even Siddhisthana. The reason why I mentioned Siddhisthana is that we know that from all the other sthanas there are a lot of questions that have been coming, but Siddhisthana has not been that frequently asked. But for the past few years, especially in the Panchakarma Siddhi part, etc., we can see that contraindications of particular procedures and their complications have been asked as assertion and reason. So Siddhisthana is also gaining importance, but Kalpasthana is having uh, 12 chapters, and in those 12 chapters we have very less bulk of portions to complete. So I thought that before coming into the main content, uh, I thought I shall share some experiences with you, and I thought I shall give 5 points that are most important while preparing for an entrance. Just like Abraham Lincoln said, if you are given 8 hours to cut a tree with a sword, you must spend 7 hours sharpening the sword. So how to learn is a very important thing. The method you use is very important. Okay, so five most important points I felt that we must focus on while preparing for entrance. So the first thing is that whenever we are learning for a theory exam, we have no other choice other than to learn all the portions, isn't it? But when we are appearing for an entrance exam, you always have to think like the examiner. Think like the examiner means whenever you are going through a particular portion, you have to analyze if that portion is worth putting a four option question. So even when the examiner is going through the same portion, he would also be thinking the same. Sir, And one thing, Hindi. No, sir. English is okay, sir. okay, and Sir, please inform me. दोनों. So we shall go in a mixture of Hindi and English. Okay, Sir, दोनों. Okay, sir. ठीक है, ठीक. So आपको एग्जामिनर जैसे भी सोचना चाहिए इसमें से, if there is a possibility of a four option question coming, that is very important. So बहुत लोग जो मैंने देखा है वो पढ़ रहे हैं कि चरक की 44 वादमार्गस कौन सा है, वो ऑर्डर में पढ़ रहे हैं. इसकी ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि उसमें से एक फोर ऑप्शन क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, isn't it? So we always have to think like the examiner. Okay, next point is question paper patterns analyze करना चाहिए. This is very important when we are cutting down the portions that we have to skip. There are two types of people. दो तरह के लोग होते हैं, जो एक तो जो कंप्लीट ऐसे रिवाइज करते रहते हैं, और दूसरा टाइप है वो थोड़ा स्किप कर कर पढ़ते हैं, रेलेवेंट पोर्शन सेलेक्ट करके पढ़ते हैं, isn't it? So analyzing the question paper pattern वो बहुत important है. So if we analyze before 3-4 years, इंडिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स होते थे, दैट इज BHU, जामनगर, NIA, isn't it? लेकिन अब तो सेंट्रलाइज्ड एग्जाम पैटर्न हो गए, अब तो आसान हो गए, isn't it? Before that we could not analyze which type of questions can come, which committee is setting the paper.
तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब तो एनालाइज कर सकते हैं इसमें. इफ वी एनालाइज बिफोर दिस नेशनल और सेंट्रलाइज्ड ऑल इंडिया आयुर्वेदा पीजी एंट्रेंस, बहुत सारे नॉन क्लिनिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते थे. फॉर एग्जांपल, दशीमानी में मदन फल कितने बार आए हैं, यष्टि मधु कितने बार आए हैं, isn't it? और जो अर्जुन कौन सा दशीमानी में आते हैं और हृदय दशीमानी में कौन सा ड्रग नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस तो आते रहते थे. लेकिन अब तो ज्यादातर क्लिनिकल रेलेवेंस के और चल रहा है. और पिछले जो ट्रेंड थे, दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चंस पिछले साल क्वेश्चन पेपर में आए हैं. सो वी कैन ऑलवेज एनालाइज and we can almost with these 2 points, thinking like an examiner and analyzing the question patterns, we can conclude to about 60% of the areas from where questions can be asked. Okay. और next है SLC guarantee, that is shloka, logic और code. So code मतलब mnemonic. Okay. ये एक 3 tier system है, क्योंकि कुछ चीजों के हम श्लोक पढ़ते हैं, कुछ चीजों के हम लॉजिक से रिमेम्बर करते हैं, और कुछ चीजें हम कोड या नेमोनिक कुछ कोरिलेट कर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, isn't it? लेकिन ये श्लोक, लॉजिक, कोड, if there is only one among this, there is high chance that we forget these things, because हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं. So as the time passes, there is high chance that we forget all these. So it is always safe to have all the 3. श्लोका, अगर श्लोक नहीं है तो मैटर डाल दीजिए, और श्लोक, लॉजिक और कोड. ओके. इन तीनों अगर है तो हमारे जो भी टॉपिक है उसकी गारंटी सबसे ज्यादा बढ़ता है. ठीक है, मोस्ट गारंटीड रहता है. एंड व्हेनेवर वी आर गिविंग अ कोड, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जिनको ऐसे कोड में पिक्चर डालना कंफर्टेबल रहते हैं, मतलब पिक्चराइजेशन ऑफ आइटम्स वो कंफर्टेबल रहते हैं. सम पीपल फाइंड numbers, numericals comfortable, some people find word jumbles comfortable. हम उसकी examples देखेंगे आगे जाके. It is always better to keep a code that is comfortable to you and correlatable to you. That is a best friend of yours, an experience of yours, a thing that you encounter in your daily life, isn't it? So it is always safer to select a code of that type for studying. So we'll see examples for these as we go ahead. And अगला point है revisions. Revisions actually अब तो आप लोग second phase of revision में है. So revision में mainly 3 phases होते हैं. एक तो subject wise और note making revision. उसमें क्या करना है कि हर सब्जेक्ट का नोट बनाइए और उसकी ही क्वेश्चन पेपर्स आंसर करते रहिए. और कोई अनम्यूट हो रहे हैं, ठीक, और उसकी नोट्स बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी. एंड सेकेंड फेज ऑफ रिविजन ये है कि इन दैट यू हैव टू go for a bit quicker revisions and revision cycles of all subjects, and also add on inputs from main question papers, not subject wise but main question papers. So you have to keep adding inputs to the notes of particular subjects. Okay. And the third phase is going to begin for you guys. That is, in the third phase we have to go for very quick revisions, rapid revisions, at least one subject per day, and we have to keep revising and don't try to add on new points in that phase, because it is for revising and ensuring, not for adding on new points. Because if you add on new points towards the end, you will end up in confusions. Okay. And the final point is practice. So practice means जब हम एंट्रेंस लिख रहे थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 था, अब तो 120 हो गए और बढ़ने के चांसेस भी है. सो वी ऑलवेज हैव टू practice at the rate that the exam demands. So number of questions has been increased.
सो उसी रेट पर हमें लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए. ओके. In the exam hall we may not have the concentration, or we may not have the presence of mind to regain our speed or maintain our speed, so we always have to develop it by practice. So these were the 5 points. Okay. Now coming to kalpasthana, as I mentioned earlier, kalpasthana cover करना उतना बड़ा issue नहीं है. और कल्पस्थाना में क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या फोकस करना चाहिए. सो फर्स्ट, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर. ये बहुत पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट था. मदनफल का अध्याय कौन सा अध्याय है, इज इट द फर्स्ट और सेकंड, वो अब तो उसकी इंपॉर्टेंस कम है. सो So the sequence of chapter was very frequently asked before that All India entrance came, but now it is very uncommon. And next is botanical name and family. This is a very important aspect because botanical name and family, when a drug is mentioned in Kalpasthana and when it is the Agriyaushadha of a particular Panchakarma procedure, for example, Vamana, Madana Phala, Virechana, Tribhrut, isn't it? So when it is an Agriyaushadha, the Dravya Guna experts will have an inclination to put the questions regarding that drug. And when that drug is being asked for the exam, there are chances of some other confusions. For example, Madana Phala has 2 botanical names. One is, can anyone say botanical name of Madana Phala? Randia spinosa, sir. ठीक है, Randia spinosa तो है. Randia Randia dimetorum. dimetorum. Randia dimetorum is the most common synonym of or botanical name of Madana Phala. लेकिन एक और botanical name है, वो है Cartunaragum spinosa. ठीक है. लेकिन अगर ऑप्शन में Randia वाला ऑप्शन नहीं है, then you have to go for Cartunaragum. Okay. So similar confusions can happen while learning botanical names. So it is very important to by heart the botanical name as well as family of the drug. Next is properties of drug specific to the context. When we learn Dravya Guna, जब हम द्रव्य गुण पढ़ते हैं, we go to रसगुण वीर्य विभाग, हर ड्रग का रसगुण वीर्य विभाग ढूंढते हैं और वो भी पढ़ते हैं. लेकिन ये कल्पस्थान के बैकग्राउंड में उसकी उतना जरूरत नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मेंशन्ड इन कल्पस्थान. फॉर एग्जांपल, जीमूतकम त्रिदोषघ्नम यदा सौषध कल्पितम. सो जीमूतक इज त्रिदोषघ्न व्हेन मेंशन्ड इन कल्पस्थान. वो बाय हार्ट करना जरूरी है. ठीक है. नेक्स्ट इज सिनोनिम्स. सिनोनिम्स उसके लिए हम थोड़ा कोड वगैरह है, we look into that. Okay. And used part भी इस तरह के specific used part लेना चाहिए. For example, Phala and Pushpa of G Mutaka is being used, and for Madana Phala, Phala Pippali is used. So such used parts are also to be learned with focus. Next is specific indications. For example, Dati Uttaraga of Madana is used for Kapha Prasega, Tamaga, and Chardi. That is not mentioned anywhere else. And Shweda, that is Koshataki, that is to be consumed along with Ikshurasa for Kasa. So that is a specific indication of Ikshurasa. Ikshurasa ka ek specific indication hai wo. So you have to go for the specific indication mentioned for a particular drug. वो क्रेय योग स्मेलिंग फॉर्मुलेशन हो सकता है, और ये वर्ती क्रिया हो सकता है. ऐसे स्पेसिफिक अगर मेंशन हो तो वो फॉलो करना चाहिए. एंड फाइनली द नंबर ऑफ टोटल योगास मेंशन्ड इन द चैप्टर. ओके. सो फॉर नाउ we shall analyze the total number of yogas mentioned for each drug in Vamana Prakarana. So first one is Madana. Madana is 133. I have not put any particular code because many of you might have by hearted it by now. Next is Jimutaka. So Jimutaka,
चैप्टर शुरू करने से पहले let us keep G Mutaga as letter G. So in our childhood as well as adolescence, that is teenage, we have come across two main words with G. That is, one is 3G. I hope many of you might be familiar with that 3G data, because that is one of the first instances where we were exposed to an internet revolution, isn't it? So 3G data was most trending word in our childhood, and when we came to our later teenage, most important word beginning with G was GF, girlfriend, isn't it? So two examples for G, that is 3G and GF. And 3G, this correlation is very important because we are going to learn the chapter on this basis. Okay, so 3G for G Mutaga, let us write 3G and 3 along with small g. So small g is more like when we write 3 and 9. Okay, so 39. So G Mutaga 39 formulations. Next is Ikshwaku. So when we go to our villages, we can get Ikshu. Ikshu means sugarcane. Sugarcane, we drink it as juice, isn't it? So Ikshu juice. So Ikshu Drava. Ikshu Drava, I have mentioned the word Drava because uski particular importance hai. Means when we go to village, we get Ikshu Drava, that is fortified with Adrak ki ras, Nimbu ki ras, etc. Isn't it? So 45 means 45. So Ikshu Rasa or Ikshu Drava, that is fortified with Adrak, Nimbu, etc. So Drava here has a particular significance. Drava means Sushrutas Sutrasthana 45 Adhyaya is Drava Dravya Vijnaniya. So it was a previously asked question, which is the 45th Adhyaya of Sushruta Sutrasthana. Nowadays it is not asked, but still I had learned it as follows. So Ikshu Drava, fortified Ikshu Drava. Okay. Next is Dhamargava. Actually, Dhamargava and Kritavedhana, both of them, इनमें 60 formulations mentioned है. जब एक आयुर्वेद स्टूडेंट जो फाइनल ईयर कंप्लीट किया है, when he hears 60, what is the first word that comes to his mind? Can anyone say? Shashti. Shashti Bakrama. Okay, that is it. Shashti Upakrama, isn't it? So what are Shashti Upakramas? They are 60 upayas to cure Vranavedana, isn't it? 60 upayas or 60 margas to cure Vedana. So marga means Dhamargava, Vedana means Kritavedana. So 60 margas to cure Vedana. Okay, so Dhamargava 60 and Kritavedana 60. Next is Vatsaga. Vatsaga means Kudaja. So in Kudaja, one of my friend used to learn it as 1/8 saga, but I found this more comfortable. So Vatsaga, in every syllable, हर syllable में A alphabet होते हैं. जब A सुनते हैं, A certificate सबसे पहले याद में आते हैं, isn't it? So A certificate मतलब adults only मतलब 18 plus. Okay. ये अब सबको अपना अपना कोड्स फेमिलियर और कंफर्टेबल कोड्स होगा, लेकिन हमेशा जनरल रूल ये है कि आवर ब्रेन ऑलवेज प्रेफर टू थिंक लोकली एंड डर्टी. ओके, इसलिए थोड़ा मसाला वगैरह डालकर अगर याद रखोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है. और वत्सगा मीन्स VATSAKA, A certificate 18 plus. Okay, so total number of yogas can be calculated from this. I have not put any particular code for that. 355. And अगर चैप्टर की सीक्वेंस याद करना है तो उसमें एक छोटा सा कोड है. It is this: Majida Cooker, Ma JI Tha KU, KU मतलब कुडजा, and KR कृतवेधना. ओके, मजीदा कुकर, अगर ऐसे कुकर याद रखोगे तो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर भी याद रहेगा. You can use other ways. For example, Dhamargava, D is the fourth letter of English. So for remembering, Dhamargava is the fourth chapter, D is the fourth letter of English.
वत्सगा, अगर कुडजा से आप कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन रिमेंबर एज वत्सगा. This is the Roman letter 5, isn't it? So it is the 5th chapter. So there are similar options to or easy ways to keep these things in mind. Now let us come to the first chapter of Kalpasthana, and total number of yogas in Kalpasthana is 600. I hope everyone might be familiar with that. Now basics of Kalpasthana. मदन कल्प में सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कल्पस्थाना बताए गए हैं. So why has Kalpasthana been mentioned? So kalpanartham for administering, bhedartham to differentiate between which drug to use, vibhagartham and to classify them, samyak upakalpanartham along with particular kalpana, along with particular anubana, how to use them. So these 4 are the main purposes of mentioning Kalpasthana. Okay, next is Shodhana Dravya in general. So Shodhana Dravya has 4 properties or 5 properties which are most important. हेलो, नमस्ते सर. नमस्ते, बोलिए. सर आपको दोनों ही लैंग्वेज यूज करनी पड़ेंगी, वरना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा. थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत बाउंस हो रहा है. तो आपको दोनों लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, वरना सर बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है क्लास लेने का. ठीक है, ठीक. शोधन एस से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और एस मतलब इंग्लिश लेटर एस, एस के बाद एस टी यू वी आते हैं. सो एस के बाद एस टी यू वी. एस मतलब सूक्ष्म, तीक्ष्ण, उष्ण, व्यवायी एंड विकाशी. एस टी यू वी. सो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं. A question can come like this: which among the following is not a general property of शोधन द्रव्य? उसमें ये वाला ऑप्शन डाल सकते हैं. सो एस टी यू वी ये कोड याद रखना है, ठीक है. एंड आग्नेयत्वाद विष्यन्दन्ति, तैक्ष्ण्याद विच्छिन्दन्ति. सो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. और इसकी 2 प्रकार का है. कल्पस्थाना मीन्स देयर आर 2 प्रोसीजर्स जो इंपॉर्टेंट है. एक है वमना और एक है विरेचना. ओके, सो वमना एंड विरेचना दो हैविंग डिफरेंट नेम्स. दोषहरण बिकॉज उभयं शरीरमन विरेचनाद विरेचन संज्ञा लभते. दे बोथ आर कॉल्ड विरेचना बिकॉज दे हेल्प इन दोष निर्हरण. ओके, नाउ कमिंग टू वमना. वमना मीन्स ऊर्ध्वभाग दोषहरण. सो वमना का फर्स्ट 2 लेटर्स वी ए है. ये भौतिक प्रोडोमिनेंस अंडरस्टैंड करने के लिए है, ठीक है. वी ए मतलब वायु अग्नि. ये by remembering this vayu agni you have another benefit, that is if you remember vayu and agni, जो वायु और अग्नि में प्रेडोमिनेंट है उनकी रसगुण वीर्य विपाक ऐसे होते हैं. रस में तिक्त कटु कषाय होते हैं, गुण में लघु रुक्ष होते हैं, वीर्य उष्ण विपाक कटु. This is the general rule and this applies to almost all the vamana dravyas except Valsaga and Ikshvaku. So vamana means Va, that is vayu agni. So अगर हम वायु और अग्नि इसमें इन्फर कर लिया, विरेचन में आकर हमें भूमि और जल मिल जाते हैं. लेकिन आकाश इसमें नहीं है. Can anyone tell why Akash is not mentioned in any of the Shodhana areas or Shodhana predominances? ये पदार्थ विज्ञान का एक क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, आकाश इसमें मेंशन नहीं किया क्योंकि आकाश गुण भूयिष्ठायाम संशयमनानि means आकाशा is mainly intended for samshamana. So आकाश इसमें mention नहीं है. Okay, now coming to desha.
देश में वाग्भट का ओपिनियन कोई बता सकते हैं? कैन एनीवन टेल व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ दोषा प्रेडोमिनेंस ऑफ देशा अकॉर्डिंग टू वाग्भटा? मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि आपको भी एक रिफ्रेशिंग हो जाएगा। आनुपदेश कफ और चांगलदेश वात साधारण सम। करेक्ट करेक्ट ओके। जांगलम वादभूयिष्ठम आनुपम तु कपोलबणम। सो दैट इज ओपिनियन ऑफ वाग्भट। लेकिन जब चरक सुश्रुत में आते हैं इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो याद रखने के लिए जांगल को ऐसा लिख लीजिए। यू हैव टू यू कैन राइट जांगला एज JANKALA, means you have K here, so we write Vada Pitta Kapha as V, P and K. So K for Kapha came here, so the remaining two doshas are Vada and Pitta, isn't it? So Jankal mein K aa gaye, baki remaining is Vada and Pitta. Okay, and coming to Anupa, we can see that in Anupa the letter that is occurring is P, so baki to V and K. I think most of you might be familiar with this, but still for ensuring that you don't forget this, I am giving this code. So Jankala में K आ गया, इसलिए बाकी VP हो गए, वादपित हो गए, and Anupa में P and remaining is Vata and Kapha. And इसमें बहुत सारे features बताए गए हैं, and if it is not so important, if you want to remember it, there is a shortcut, that is अगर स्थिर मेंशन हुआ है, स्थिर वर्ड मेंशन हुआ है, वो मोस्टली जांगल देश का है। एंड अगर सुकुमार मेंशन है, सुकुमार मृदु मेंशन है, तो वो मोस्टली आनुप देश की होगी। ओके, एंड छोटा सा डिफरेंस है, वो मैटर नहीं करता। वन थिंग इज स्थिर कठिन मनुष्य प्राय, and Sushruta mentions it as Sthira Krisha Sharira Praya, and Charaka mentions the wind in Jangala Desha as Sthira Shushka Pavana, और सुश्रुत मेंशन करते हैं उष्ण दारुण वाद। ऐसे दो तीन डिफरेंसेस है। और मृगतृष्ण मतलब ओएसिस, वो तो डेजर्ट्स में ही दिखते हैं, जंगल देश में ही दिखते हैं। एंड इन अनुपदेश it is surrounded by oceans, सरि समुद्र पर्यंत प्राय शिशिर पवन बहुला, ऐसे लिखा हुआ है इसमें। और सुकुमार पुरुष। Hi there, I feel good. And जंगल और अनूप में कौन सा हेल्थी है? Can anyone say? Jangala स्वल्प रोगदा। So Jangala is always healthy, वो भी याद रखना है। और साधारण अगर याद करना है तो उसमें स्थिर सुकुमार पुरुष लिखा हुआ है, दोनों चारक और सुश्रुत में। स्थिर और सुकुमार अगर दोनों आते हैं वो साधारण की है, और साधारण उभय लक्षण साधारण। सो इन साधारण बोथ जांगल अनूप दोनों आते हैं, ठीक है, इसलिए स्थिर और सुकुमार दोनों है उसमें। और इसके साथ सुश्रुत की अदर क्लासिफिकेशंस वो भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि whenever we study we have to study it correlating with other samhitas, क्रॉस रेफरेंसेस देखना पड़ते हैं हमेशा, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सुश्रुत ने पंचभूत के अनुसार भूमि को क्लासिफाई किए हैं, है ना। सो दे हैव टू बी एनालाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर आचार्यस आल्सो। ड्रग कलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेकमेंडेड तो साधारण या जंगल देश है। ओके, सो एंड the drug that is having its roots towards northern direction और उदीची is most recommended। ये संस्कृत इंग्लिश दोनों टर्म्स याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई सा भी आ सकता है, मींस दे कैन आस्क संस्कृत टर्म और इंग्लिश टर्म, सो दोनों याद रखना पड़ता है। and the collecting person must sit in the north or east direction। okay, next है kala। so regarding kala, Charaka has an opinion, and in Sushruta Samhita also there is a list of opinions।
many people teach it in the name of सुश्रुता, लेकिन वो सुश्रुत की ओपिनियन नहीं है, वो केजदाहुर आचार्य करके बोलते हैं। इसके मतलब ये है कि वो सुश्रुत के नहीं है, किसी और का है, लेकिन सुश्रुत संहिता में मेंशन्ड है। ठीक है, इसमें चरक की कालानुसार ये वाला देखते हैं, तेषां शाखापलाशम अचिर प्ररूढ़म वर्ष वसंतयोर ग्राह्य। सो शाखा और पलाश मीन्स ब्रांचेस एंड लीव्स। सो जब भी हम लीव्स या ब्रांचेस ड्रॉ करते हैं, उसमें हमें वी ड्रॉ करना पड़ता है ना, means whenever we have to draw a branch or leaf, we draw V. So on two ends of V, we either draw the leaves or we draw further branches, isn't it? So whenever we show a branching, we draw a V. So दोनों ऋतु जो V में शुरू हो जाते हैं, उसमें branch, leaf ये कलेक्ट कर सकते हैं। So शाखा and palasha, V and V. Okay, branches and leaves, V and V. Varsha, Vasanta. So keep this image in memory. Okay, next is roots या मूल। so मूल ग्रीष्मे मूलानि शिशिरेवा। so इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ये है कि शीघ्र मूल, ये वाला याद रख लो। अगर लेकिन लेडीज को एक और इजियर एग्जांपल ये है कि ग्रीसी रूट्स। अगर एक्सेसिव समर सीजन है या एक्सेसिव विंटर सीजन है, उसमें क्या होता है कि बालों में डैंड्रफ जैसे होकर ग्रीसी हो जाते हैं बालों के रूट्स, है ना, वो लेडीज को ज्यादा पता होता है। सो ग्रीसी रूट्स कैन बी यूज्ड, अदरवाइज शीघ्र मूल, शिशिर ग्रीष्म फॉर मूल। ओके, या ग्रीसी ग्रीष्म शिशिर फॉर रूट्स। सो ग्रीसी रूट्स या शीघ्र मूल। नेक्स्ट इज शरद, शरदी त्वक् कंद क्षीराणि। सो दैट इज अ श्लोका, and for this I have not mentioned because for all the other aspects I have mentioned, so you can eliminate it from this. Okay, so sharadi tvak kanda kshira. Tvak means bark, kanda means tuber, kshira means latex. Hemante sarani, sara means heartwood. So heartwood वो भी HE से स्टार्ट होते हैं, हेमंत वो भी HE से स्टार्ट होते हैं, हेमंत हार्टवुड, वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। और पुष्प फल यथा ऋतु पुष्प फलमिति। So according to the flowering season, you have to collect pushpa and phala. Okay, so pushpa phala means flower and fruit. So flower and fruit in flowering season. So FFF अगर याद रखोगे तो वो भी कंफर्म हो जाएगा। So branches and leaves V and V, and shigrumula या greasy roots, हेमंत हार्टवुड HE, and पुष्पा एंड फला FF and F। ठीक है, और सुश्रुत की ओपिनियन वो ऑथेंटिक नहीं है, इसलिए वो पूछने के चांसेस भी कम है। देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड। सो दोस हु आर क्यूरियस अबाउट दैट कैन गो थ्रू इट। इट इज मेंशन्ड इन भूमि प्रविभागी है। एंड भेषज वगैरह यहाँ मेंशन हुआ है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें बस द विंडोज, नंबर ऑफ विंडोज हैज टू बी मेमोराइज्ड, दैट इज निवादम प्रवात एकदेशम। नेक्स्ट है अनुपान भावना एंड आलोडन। सो द लिक्विड्स इन विच द द्रव्यस आर टू बी प्रोसेस्ड, ये हर वमन विरेचन द्रव्य के लिए एप्लीकेबल है। इसमें यही याद रखना होता है, दैट इज मधु। मधु is repeated in both पित्ता and कफा, कफा पित्त दोनों में मधु है, वो बस याद रखना, बाकी तो प्रेडिक्टेबल ही है। और नेक्स्ट हम मदन फल में आएंगे। सो मदन फल जब याद रखना होता है, मदन फल वमन में श्रेष्ठ है, इट इज द मोस्ट रिकमेंडेड ड्रग फॉर वमन। सो वमन मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में किसको हम देखते हैं जो ज्यादा वोमिटिंग करते हैं? अल्कोहलिक्स है ना। सो अल्कोहलिक्स मदात्यय मदन। सो मदन वी कैन मेमोराइज इन द फॉर्म ऑफ मदात्यय। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी जो भी कोड आ रहे हैं इसमें इस चैप्टर में वो इसी से रिलेटेड है, मदात्यय से रिलेटेड है।
ठीक है. So there are two botanical names, एक तो Randia dumetorum या Randia spinosum और नेक्स्ट है कार्टोनारगम स्पाइनोसा. ये एक रीसेंट बोटेनिकल नेम है, इसलिए पूछने के चांसेस भी है. ठीक है. और नेक्स्ट है रूबिएसी फैमिली रूबिएसी. सो सिनोनिम्स ऑफ मदन. मदन करहाडस्य राढ पिंडीदग फलम श्वसनश्चेति पर्याये. सो इसमें मेनली 5 सिनोनिम्स याद रखने की है. एक तो मदन, वो पता चलने के लिए कि ये मदन का है. मदन, करहाड, राट, पिंडीदग, फल. फल तो छोड़ सकते हैं, और श्वसन. ये 5 सिनोनिम्स याद रखने हैं. इसके लिए हम एक अल्कोहलिक को याद करते हैं. दैट इज whenever we see an alcoholic in the night, mostly he would have a glass of alcohol in his hand, a cigarette in his hand, and he would be seen with these two things. Okay, so madana, so मदकारी के हाथ में रात में क्या होता है? एक पाइंट होता है. पाइंट मतलब सबको जानते होंगे, इट इज मोस्टली यूज्ड टू मेजर अल्कोहल. पाइंट और स्मोक स्मोक जो अफेक्ट करते हैं वो श्वास को अफेक्ट करते हैं. मतलब मदकारी के हाथ में, हाथ मतलब कर या हाट, दोनों यूज कर सकते हैं. मतलब कर या हाट, दैट इज कर या हाथ. सो मदाती रोगी के हाथ में रात में क्या मिलते हैं? पाइंट और स्मोक. मदकारी के हाथ में रात में पाइंट और स्मोक. अगर ये 5 वर्ड याद रखोगे तो इसकी सिनोनिम्स याद आए. नेक्स्ट, मदनफल श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वो अनपाई है. मींस इट इज द लीस्ट कॉम्प्लिकेटिंग एमेटिक ड्रग. ओके, अनपाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी असर्शन रीजनिंग में आ सकते हैं. मतलब मदनफल इज द अग्री औषध फॉर वमन. रीजन बिकॉज इट इज अनपाई, या कुछ और रीजन डालकर ऑप्शन डाल सकते हैं. assertion and reasoning both are correct, both are wrong. A is correct and R is wrong. A is wrong and R is correct. ऐसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है उसकी कलेक्शन. उसकी कलेक्शन की टाइम है ग्रीष्म वर्षयोर अंतरे या वसंत, सॉरी ग्रीष्म वसंतयोर अंतरे या वसंत ग्रीष्मयोर अंतरे. ओके, सो जब अल्कोहल पीते हैं, अगर आपने अल्कोहल पिया नहीं तो जब अरिष्ट पीते हैं, where is the first sensation happening? It happens in our throat or neck, isn't it? Neck means griva. So grishma vasanta, grishma vasantayo andare. So if you memorize, madana acts on griva और madhya acts on griva, हमें मिलते हैं ग्रीष्म वर्ष. ठीक है. और मैत्र मुहूर्त में कलेक्शन करना चाहिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. और मृगशीर पुष्य नक्षत्र में करना चाहिए, ये भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की नहीं है. And it has to be kept in कुशपुट और गोमय लेप और धानी राशि. ये 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, कितने दिन तक रखना चाहिए. सो दिस ड्यूरेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट. सो वो याद करने के लिए मद 8 येया. सो मदात्यया कैन बी रिटन एज मद 8 येया. सो यूज्ड पार्ट इज फल पिप्पली. फल पिप्पली तो याद रहेगा ही. नेक्स्ट इज वामन प्रोसीजर. ये सिर्फ मदन फल के लिए नहीं है, सब वामन प्रोसीजर के लिए ये कॉमन प्रोटोकॉल है. सो 2 to 3 days स्नेह और स्वेदा, और उसके बाद उत्क्लेशन करना चाहिए. ये 2 to 3 days याद रखना है. और उत्क्लेशन की मलसीमाश तिला एक्सेट्रा जो भी कफ पित्त वर्धक है वो यूज कर सकते हैं. वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सो डोसेज ऑफ फल पिप्पली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें 3 जगह पर मिलते हैं. वी शैल लुक इनटू दैट. ओके, डोसेज ऑफ फल पिप्पली इज अंदर नख मुष्टि मात्रा. सो अंदर नख मुष्टि मात्रा, नख ऐसे रखकर जितना मुष्टि में मिलते हैं वो है इसकी एमेटिक डोज. ये चरक संहिता की ऑनलाइन एडिशन में इसकी स्टैंडर्डाइज्ड डोज बताए गए हैं, लेकिन वो पूछेंगे नहीं क्योंकि वो क्लासिक रेफरेंस नहीं. Now we have to give vamana up to samyak lakshana, that is apitta darshana.
you would have seen this in Siddhisthana also, that is Pittantam, Ishtam, Vamanam, and Kaphandam, Virechana. Okay. So Apitta Darshana is a Samyak Lakshana of Vamana. Now, अगर अयोग मिलते हैं इसमें, so पिपली आमलग सर्षप वचा कषाय लेना पड़ते हैं. So पिपली आमलग सर्षप वचा, ये इसमें भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है. This is very important. Why is Mathu Saintava given in Vamana? One is Kapha Vilayana, next is Kapha Chedana. इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. Kapha Vilayana Chedanartham. So this point is to be memorized. इसमें कोड की उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए कोड डाला नहीं, but it can be memorized easily. Kapha Vilayana चक्षुष्यम छेदी लिखा हुआ है मधु की प्रॉपर्टी में, और सैंथवा इस लवणा, इसलिए वो विलयन भी करते हैं. कफ विलयन छेदनार्थम. सो मधु सैंथवा. सो जब हम वमन ड्रग हमेशा हम गर्म ही देते हैं. वी गिव वमन ड्रग in a hot or warmed form, but when we are consuming madhu with a hot substance, it should be poisonous, isn't it? That is ushnam ushnartham ushnena is contraindicated for madhu. So madhu उष्ण के साथ विष जैसे एक्ट करते हैं, लेकिन वामन में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है. इसकी रीजन ये है कि अपक्व प्रत्यागमनात् और दोष निर्हरणात्. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये भी असर्शन रीजनिंग जैसे आ सकते हैं. एक मधु इज टू बी कंज्यूम्ड अलोंग विथ हॉट वामना ड्रग. रीजन ये अपक्व प्रत्यागमन, दोषहरण या कोई और ऑप्शन आ सकते हैं. ठीक है. सो द रीजन इज दैट there is no Agnipaga involved in Vamana, and second reason is that it also helps in expelling the existent Vikrita doshas. So due to these two reasons, it is not contraindicated in Vamana. So अगर Vamana में अपक्व प्रत्यागमन है, विरेचन में क्या है, ये एक क्रॉस रेफरेंस पूछ रहा हूं. कैन एनीवन आंसर? कोई आंसर कर सकते हैं? अपक्वम वमनम दोषान डैश विरेचना. उसमें पक्व नहीं है, पच्यमान है, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूजन आ सकते हैं उसमें. अपक्वम वमनम दोषान पच्यमान विरेचना. जब श्लोक पूछते हैं उसमें एक इसी फॉर्मूला है. मतलब इफ अ श्लोका इज आस्क्ड टू अस, वी कैन use the options in the word options in the question to fill in the shloka, isn't it? अपक्वम वमनम दोषा पक्वम विरेचनम, इसमें वो श्लोक की वृत्त कंप्लीट नहीं होते हैं, लेकिन जब पच्यमानम विरेचनम तभी वो श्लोक का वृत्त कंप्लीट हो जाते हैं. वो एक टेक्निक है, जिनको वृत्त आते हैं यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो वमना, in वमना madhu can be administered along with hot drug. It is not dangerous because उसमें अपक्व प्रत्यागमन है और दोषहरण भी है. नेक्स्ट ये है कि क्षीर, जब एक आदमी अल्कोहलिक है, उनमें दाह है और रक्तपित्त, तो उसमें हम हमेशा क्षीर ही एडवाइस करते हैं. इवन ज्वर में ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे प्लुष्टम वनमिव अग्निना चरक चिकित्सा में बताया गया है. So in Charaka, Plushtam, Vanamiva Agnina, there is a reference. So in such conditions, Kshira is advised, isn't it? Ghrita can be used to cure Daha. Kshira can be used to cure Daha. Could you say it again, please? So Kshira can be used in Daha and Raktapitta. जब alcoholism में बर्निंग सेंसेशन और रक्तपित्त, जो दोनों पित्त विकार जब होते हैं, उसमें क्षीर यूज करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है दति उत्तरगा. उत्तर मींस क्या है? अपवर्ड्स, isn't it? So जो भी अपवर्ड संप्राप्ति है उसमें दति उत्तरक का यूज कर सकते हैं. सो कफज छर्दी, छर्दी मींस उल्टी है, अपवर्ड मोशन है. तमक, यहाँ तमक श्वास याद कर लीजिए. तमक श्वास मतलब वो भी वायु की ऊर्ध्व गति है, प्रतिलोम गति है. और प्रसेग, प्रसेग भी सलाइवेशन है, वो भी
ऊर्ध्वजत्रु ही है, और कफ के स्थान भी अपवर्ड ही है, बॉडी के अपवर्ड ही है. सो उत्तरगा मीन्स it will be useful in upward sampraptis, that is chardhi, tamaga and prasega. So uttarga means upwards, chardhi, tamaga and prasega. नेक्स्ट है पय संतानिका. ये क्या है कि मदन फल का अलग अलग फॉर्मुलेशंस है. these are different formulations or forms in which madana phala can be administered. so we are going through that. एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक जैसे दधि उत्तरगा, पायस संतानिका, और भी बहुत सारे हैं जैसे वर्ती क्रिया, मात्रा, ऐसे बहुत सारे हैं. वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 8-10 योग मेंशन हो जाते हैं उसमें, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, लेकिन जब फॉर्मुलेशन स्पेसिफिक है या इंडिकेशन स्पेसिफिक है तब हमें याद करना चाहिए. सो पय संतानिका. सो संतानिका मीन्स क्रीम. ओके, सो संतानिका उसकी डोसेज वर्णंजलि है. सो इट इज टू बी गिवन व्हेन देयर इज पित्त प्रकोपा इन उरकंठ हृदय कोटेड विद तनुकफा. सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला वर्ड है तनुकफा, क्योंकि बाकी हर जगह पे कफ तो है लेकिन इसमें तनुकफ है. सो तनु मीन्स थिन. सो थिन क्रीम यहाँ याद रखना चाहिए, ये वाला वर्ड थिन क्रीम. ओके, सो तनुकफ जब है तब पय संतानिका देना चाहिए. नेक्स्ट इज नवनीत. सो अगर आप क्रॉनिक अल्कोहलिक्स को देखते हैं, वो इमेसिएशन या अल्कोहल की आफ्टर इफेक्ट्स अवॉइड करने के लिए वो अल्कोहल के साथ अमूल बटर भी खरीदते हैं. मतलब आफ्टर द एपिसोड ऑफ अल्कोहलिज्म they consume butter in order to avoid acidity and other complications arising from alcoholism. So जब मैं यूजी पढ़ रहा था वहां भी हमारे हॉस्टल में ऐसे ही करते थे कि अल्कोहलिज्म के एपिसोड के बाद ये अमूल बटर की एक पैकेट खा लेते थे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नवनीत जब क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, ये अल्कोहलिज्म मतलब मदन फल को याद करने के लिए है. सो कफा अभिभूत अग्नि विशुष्य देहम. सो टू अवॉइड इमेसिएशन ड्यू टू मदातेय वी आर गिविंग नवनीत. ओके, टू अवॉइड इमेसिएशन ड्यू टू मदातेय वी आर गिविंग नवनीत. नेक्स्ट इज क्रेय योगा. क्रेय योगा मीन्स एक मेडिसिन को स्मेल कर वोमिटिंग करना. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ये और 2-3 जगह पर आ रहे हैं, लेकिन मदन फल का क्रेय योग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक इंडिकेशन भी आ रहे हैं. सो सुकुमार उत्कृष्ट पित्त कफ औषध द्वेषी. सो हॉस्टल में ऐसे लोग को दिखते हैं जो पहले बार अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, और या जिनमें अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए स्टैमिना, एम्पियर वगैरह नहीं है. जब ऐसे लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो अल्कोहल के स्मेल सुनकर ही वो उल्टी कर लेते हैं, है ना. सो सुकुमार लोग जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो अल्कोहल की स्मेल सुनकर ही उल्टी कर लेते हैं. या जब हम हेवी मील या अल्कोहलिज्म के बाद जब हम ट्रैवल करते हैं, हम एक उत्कृष्ट स्टेज में होते हैं. वी आर नॉट उत्कृष्ट स्टेज. सो whenever we are going for a long trip after drinking, there is high chance of having a vomiting. So सुकुमार उत्कृष्ट कफ औषध द्वेषी. औषध यहाँ अल्कोहल को ही ले लीजिए. मीन्स इवन इफ वी गेट द स्मेल ऑफ अल्कोहल वी स्टार्ट वोमिटिंग. सो स्मेल, वोमिटिंग, इट इज सीन इन सुकुमार, उत्कृष्ट कफ एंड औषध द्वेषी. these 3 people. ओके, ये क्रिया योग बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे पूछा जा सकते हैं कि सुकुमार और उत्कृष्ट पित्त कफ और औषध द्वेषी में मदन का कौन सा फॉर्म में यूज करना चाहिए. सो दैट इज क्रेय योगा, दैट इज स्मेलिंग. नेक्स्ट इज लेह्य और चूर्ण. ये दोनों एक साथ मेंशन हुआ है. इट इज टू बी प्रिपेयर्ड विद भलादक विधान. सो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी for the sake of mentioning I have mentioned it. So pitte kapha sthanagate.
So there is very less chance of this being asked. Still mentioned for the sake of communication. Now इनकी इंडिविजुअल फॉर्मुलेशंस की संख्या है ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक इमेज मेमोरी रखना चाहिए, वो पूछने के चांसेस भी बहुत कम है। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप में किसी को अगर ये बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ठीक है, सो कल्पस्थान, इसमें पहले कोड ये था कि जीमूतक मतलब दो मीनिंग्स है, एक तो 3G है, एक तो GF है, उसकी इंप्लीकेशन हम देखेंगे जीमूतक कल्प में। नेक्स्ट है इक्ष्वाकु। व्हेन वी हियर इक्ष्वाकु सबसे पहले याद आते हैं इक्ष्ु मींस शुगर केन ज्यूस, इक्ष्ु द्रवा। सो इक्ष्ु द्रवा fortified with नींबू एंड अदरक। सो fortified मतलब 45। सो इक्ष्वाकु में 45 योग है, और सुश्रुत संहिता की 45th चैप्टर सूत्रस्थान की वो द्रव्य विज्ञानी है। नेक्स्ट है थामार्गव। सो व्रण वेदना को क्योर करने के लिए 60 मार्ग हैं, दैट इज 60 मार्गस टू क्योर व्रण वेदना, षष्टिरुपक्रमा। ओके, एंड वल्सगा, VA, TSA and KA. So A means A certificate means adults only means 18 plus. Okay, so कृतवेदना भी मेंशन हुआ। नेक्स्ट है सीक्वेंस याद करने के लिए मजीदा कुकर मींस मदनफल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, मा, जे, आई और धामार्गव, कुटज एंड कृतवेदन। एंड अगर दूसरे तरह से याद करना चाहते हैं तो D is the fourth letter of English alphabet, and Valsaga, V means Roman letter 5. Okay, total number of yoga ये है 355, and कल्पस्थान में total number 600 है और 355 वामन की। नेक्स्ट मदन कल्प, कल्पस्थान कल्पनार्थम, भेदार्थम, विभागार्थम, उपकल्पनार्थम। और शोधन द्रव्य मींस, शोधना मींस STUV, S के नेक्स्ट अल्फाबेट्स तो STUV होते हैं। सो S सूक्ष्म, T फॉर तीक्ष्ण, U फॉर उष्ण, V फॉर यवाई विकाशी। सो आग्नेयत्वाद विष्यन्दयति, तैक्ष्ण्यात् विच्छिन्दन्ति। देन विरेचना एंड वामना दोनों का अलग नाम है, लेकिन दोनों को विरेचन ही बुलाते हैं। ठीक है, और वामना के भूत प्रेडोमिनेंस देखना है तो वामना मींस VAMANA। सो VA मींस वायु अग्नि। सो वायु अग्नि मतलब वो रस में तिक्त कटु है, कषाय भी आ सकता है, और गुण में लघु रूक्ष है, वीर्य उष्ण, विभाग कटु। उसकी एक्सेप्शंस है वत्सग, इक्ष्वाकु। नेक्स्ट है विरेचन मींस, वामना मींस वायु अग्नि, विरेचन मींस भूमि एंड जल और पृथ्वी एंड जल, एंड आकाश संशमनीय है। ये चरक की ओपिनियन नहीं है, ये सुश्रुत की ओपिनियन है। ठीक है, और देश में जांकला, JANKALA, के मतलब कफ आ गए उसमें, बाकी तो वात और पित्त है, BP। ठीक है, और उसमें कीवर्ड ये है कि स्थिर, अगर स्थिर आ गए तो वो जांगल की है। ठीक है, और उसमें सुश्रुत ने उष्ण दारुण वात बताए हैं, और चरक ने स्थिर शुष्क पवन, और सुश्रुत ने स्थिर कृषि शरीर, और चरक ने स्थिर कठिन। और इसमें एक और पिक्यूलियरिटी ये है कि सुश्रुत ने वात पित्त रोग भूयिष्ठ मेंशन किया है, बट चरक हैज मेंशन्ड वात पित्त बहुला regarding the people of those place, not regarding the diseases of their place. That is not important from the entrance point of view. ठीक है, आनुप में P है, बाकी तो V और K है। सो वात कफ प्रधान, और शिशिर पवन बहुला, इसमें स्थिर शुष्क पवन, शीत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पित्त आ रहे हैं,
इसमें वात कफ दोनों शीत है, इसलिए यहाँ पर शिशिर पवन बहुला। ओके, और इसका कीवर्ड ये है कि सुकुमार। सो दोनों मिलाकर साधारण में क्या आते हैं? इन साधारण वी कैन सी स्थिर एंड सुकुमार मिक्स्ड। ओके, सुश्रुता's क्लासिफिकेशन भौतिक बेसिस पर भूमि को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज जांगला और साधारण देशा इज recommended फॉर कलेक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स situated towards northern direction is recommended for collection and northeast direction में बैठकर कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज काला, काला शाखा पलाश वर्ष वसंत, सो ब्रांचेस एंड लीव्स वी एंड वी। ओके, सो ये वाला इमेज याद रखिए। नेक्स्ट इज रूट और मूला, सो इधर ग्रीसी रूट्स याद रखिए, नहीं तो शीघ्र मूल याद रखिए। ठीक है, ये चक्रवाणी की कमेंट्री है कि ग्रीष्म में आग्नेय लेना चाहिए और शिशिर में सौम्य लेना चाहिए। ये एक हायर लेवल के लिए है। और शरदी त्वक कंद क्षीराणी वो एक्सक्लूड करके हमें मिल जाएगा। सो हेमंत फॉर हार्टवुड, हेमंते साराणी, हेमंत हार्टवुड, HE। फल एंड पुष्प, fruit and flower in the flowering season, so F and F। सुश्रुता की ओपिनियन इसमें जेन्युइन नहीं है, वो दूसरे आचार्य की ओपिनियन कोट कर रहे हैं। ठीक है, और पेशजागर इसमें मेंशन है। नेक्स्ट अनुपान, अनुपान में मधु सबसे इंपॉर्टेंट है। मधु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कम्स इन बोथ पित्त एंड कफ। जो जिन्होंने अष्टांग हृदय बाय किए, चक्षुष्यम छेदी त्रिट श्लेष्मा विषहित्मा अस्र पित्त नुत, सो श्लेष्मा और पित्त उसमें भी आते हैं। ठीक है, मदनफल, मदनफल मींस मदात्य, अल्कोहलिक। ठीक है, उसकी दो बोटेनिकल नेम है, एक है रैंडिया डिमेटोरम या रैंडिया स्पाइनोसा और कार्टुनारगम स्पाइनोसा। इसकी फैमिली है रुबिएसिए। और सिनोनिम्स, सिनोनिम्स याद करने के लिए एक अल्कोहलिक को इमेजिन कर लीजिए। वो मदात्य रोगी के हाथ में रात में क्या होते हैं? एक पाइंट और एक स्मोक। मतलब मद मींस मदन, कर करहाट या हाथ भी सोच सकते हैं, करहाट। रात राठ, पिंडीदगा पाइंट और श्वसन स्मोक। ओके, सो मदगारी के हाथ में रात में पाइंट और स्मोक। और वो सबसे रिकमेंडेड है क्योंकि वो सबसे कम कॉम्प्लिकेशन करते हैं। वो इट कॉजेस लीस्ट कॉम्प्लिकेशंस। और कलेक्शन ग्रीष्म वसंतयोर अंदरे, सो ग्रीवा, ग्रीवा मींस नेक। सो व्हेन वी ड्रिंक अल्कोहल द फर्स्ट इंपैक्ट गले पे होते हैं, है ना? सो ऑन द नेक। मैत्र मुहूर्त, देन कुशपुट, गोमय, धनी राशि, कीप फॉर 8 days, 8 days 8, मद 8 येया। ओके, मदात्यय। So used part is phala pippali. Now common protocol for vamana, it is 2 to 3 days of sneha and sweda, utkleshana with malsya, masha, tila, etc. और डोसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंदर नख मुष्टि और सम्यक लक्षण पित्त दर्शन। और अगर अयोग आ गए तो पिप्पली, आमलक, सर्षप, वचा, उसकी कषाय देना चाहिए। और मधु संहिता क्यों देते? कफ विलयन छेदनार्थम, और कफ विलयन एंड छेदन। मधु इसमें उष्ण दे सकते हैं क्योंकि वो उसकी पाक पचन नहीं होते और वो दोषहरण में हेल्प भी करते हैं। इट इज नॉट डाइजेस्टेड, इट हेल्प्स इन दोषहरण, एक्सपल्शन ऑफ दोषास टू। Okay, that is why Madhu is not contraindicated for usage along with hot vamana drug. So this is very important. इसकी assertioning reasoning आ सकते हैं। Next, क्षीर। So क्षीर तब देते हैं जब दाह, रक्तपित्त ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। रक्तपित्त में अजाक्षीर वगैरह देते हैं ना, वो you can think of अजाक्षीर etc. in रक्तपित्त। So दाह and रक्तपित्त। So in ज्वर also प्लुष्टम वनमिव अग्निना, जब फॉरेस्ट फायर जैसे हमारे बॉडी होते हैं तब क्षीर देना चाहिए। सो क्षीर फॉर दाह एंड रक्तपित्त। उत्तर, दधि उत्तरगा मींस
the superfluent layer of curd. So uttaraga means upward, uttara means upward, ऊर्ध्व, और वो देना चाहिए ऊपर वाला संप्राप्ति में, मीन्स अपवर्ड संप्राप्ति. सो कफज छर्दी, छर्दी भी अपवर्ड मोशन है. तमक, तमक श्वास भी अपवर्ड मोशन ऑफ वायु है, और प्रसेग अपवर्ड मोशन ऑफ कफ है. सो उत्तर मीन्स अपवर्ड्स. पय संतानिका, संतानिका मोस्ट इंपॉर्टेंट इज तनु कफा. सो तीन क्रीम, तनु, संतानिका. नवनीत, सो अल्कोहलिज्म से इमैसिएशन प्रिवेंट करने के लिए विशुष्य देह, सो उसमें क्या करना चाहिए, अमूल बटर देना चाहिए, नवनीत देना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्रय योगा. सो जब वीक पर्सन्स अल्कोहल लेते हैं उनमें वो नेक्स्ट अल्कोहल की स्मेल सुनकर ही उल्टी कर लेते हैं. सो सुकुमार, जब सुकुमार अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और अल्कोहल कंज्यूम कर कर जब उत्क्लेश हो जाते हैं, जब हम ट्रिप में जाते हैं उल्टी कर लेते हैं, और जब ऐसे लोग इसकी स्मेल सुनकर ही उनको वोमिटिंग हो जाते हैं. ठीक है. और लेह और चूर्ण फल्लादक विधान है ना, एंड इट इज टू बी गिवन इन पित्ते कफस्थानगते. And next is other formulations, modaga, utkarika, etc. They are not very important. Kashaya 9, matra 8, ghee and milk 5 each, that is total 10. Phanida and churna 2 each, total 4. Next is leha, modaga, utkarika, etc. Apupa shashkuli 16 each, shadava, etc. 10, and total 133 yogas for Madanaphala. So next class में हम बाकी 3 चैप्टर्स कवर कर लेंगे. बाकी जो भी चैप्टर्स इसमें है, दे आर ऑल वेरी स्मॉल, सो वी कैन कवर इट इन वेरी स्मॉल टाइम. सो त्रिवृत और दंती द्रवंती, ये दोनों चैप्टर्स थोड़ा लंबा है, सो वी मे नीड टाइम टू फिनिश देम. Other chapters are very small. You just have to learn about 10 to 15 points. That is it. So I think the content was useful for all of you. अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, you can ask. Sir, in Madanaphala storage, first it is put, the phala is collected and it is put in Yavarashi for 8 days. Then it ripens and it is sun dried. After that, the seed is collected and it should be soaked in dadi and other substances. In those other substances, one word comes, palala vimruttitanam punaha. So that palala means what? Didn't get you. Now Madanaphala, that collection and storage, first 8 days it is stored in Yavarashi, then it is ripened, the fruit ripens, then the seed is soaked in dadi and madhu, palala, gruta. This is there in shloka number 13. Yes. Palala means tilavikriti. That palala means what, I don't know. Tilavikriti, that is sesame seeds है ना. So जैसे पिन्नियाक है, उसकी एक अदर फॉर्म है palala. Paste form of til. A processed form of tila. Okay. Thank you, sir. Okay. Any other doubts? Actually, the last codes, actually they are not at all asked, so they have I have not seen any questions from them. That is why I have not prepared any codes for that. You don't have to waste time studying these things. I have just mentioned for namesake, so there is very less chances of these being asked. That is why I have not mentioned any code. Okay.
Hello, sir. Yes. So last year there's a question asked that how many Kalka yogas are there for the Bhargava? Like that question have come in previous question paper. Okay. Actually, for the Bhargava, there's only one Kalka yoga. I don't know whether for that, but whether it's an important for remembering this yoga numbers. Okay, then I have not prepared a code for this. I shall prepare a code and give it to you in the next class. Okay. Okay, sir. Whether it's relevant for exam, APGT? See, every drug will have these many numbers to be remembered, isn't it? So it is not easy to remember and it is not easy to ask also. So if they are asking, it would mostly be something that is very peculiar. See, Like single numbers like that. single numbers. So if there is only one yoga, for example, Ikshurasa of Shweda, it is to be consumed in Kasa. So Shweda Kasi Pibed Churnam Ikshurasayir ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है. So Shweda has to be consumed. Shweda means Kritavedana. So Kritavedana has to be consumed with Ikshurasa in Kasa. So that is a very important formulation because उसमें एक specific indication है. There is a specific indication as well as a single formulation. So if there is such a significance, only there is a chance of asking. Otherwise, it is a very rare chance. My opinion is that we don't have to waste time seeing that. But of course, I shall prepare a code for that if that is particular. So Okay, I sir. shall give it to you in the next class. Thank you, sir. Okay. Yes, ये ग्रुप में शेयर करता हूँ. If there are no further questions, I think we can wind up. Yes, sir. Thank you. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.